So here let me open my notepad and paint. These days I have installed one software called Anaconda for Python, and it made my system so slow that I'm worried that how I'll continue. I have to check the other way. So you, both of you, I mean both the category, एक रितिका is a diploma engineering student है second year की, and 12th के computer science के students है. You know people how you design a class. तो consider that मैंने एक class बनाया, ठीक है, और उस क्लास को नाम दिया मैंने एम्प्लॉय. सर आपका आवाज अटक रहा है. ओके, ठीक है. Now is it fine? Yes sir. Okay. So keep saying as and when you find this kind of the issue. So I'll repeat the statement. So I said that we have a one class and you know how to design the class. So I said class employee, curly bracket open, curly bracket close with semicolon. Now when I say I have a class, right now I am least interested or not interested कि class के अंदर क्या लिखा. वेरिएबल, फंक्शंस, प्राइवेट, पब्लिक, उसमें मुझे लीस्ट इंटरेस्ट है राइट नाउ. जस्ट फोकस ऑन माय न्यू क्लास. लेट्स से एम्प्लॉय कम्युनिटी, ऐसा करके मैंने नया क्लास बनाया. नाउ दिस कम्युनिटी क्लास will derive the information from the previously created class. Now which is previously created class? Is employee. So my new class is called EMP community is going to inherit. कैसे inherit करेगा? Colon. I have a fill in the blank and I have the previous class called employee and curly bracket open close. So what is the relation of employee community with employee? Ethan, Ritika, what is the relation of employee community with employee? किसको मैं बेस क्लास बोलूं रितिका और किसको डिराइव्ड क्लास बोलूं? एम्प्लॉय बेस क्लास है और एम्प्लॉय कम्युनिटी डिराइव क्लास है. करेक्ट है, डिराइव क्लास हो गया. वेरी गुड. और इफ आई वांट टू से इथेन विच वन इज द पेरेंट क्लास एंड विच वन इज द चाइल्ड क्लास, आप क्या बोलोगे? Class employee is parent and the child is एम्प्लॉय employee कम्युनिटी, राइट. सो इनहेरिटेंस का डेफिनेशन क्या है? आपके और मेरे दिमाग में इनहेरिटेंस आता है तो क्या दिमाग में आता है? आई वांट टू हियर फ्रॉम यू. सो जस्ट शाउट आउट what you understand by inheritance in our social life. Yes, Achintya? something which is passed on from one generation or something. Very good. Something passed out from one generation to another. Good. Keep saying. Yes, Achintya? Ritika, fast. Share what you understand by inheritance. Huh? Both of you are not saying. So let me go further. So I said inheritance is a process
or mechanism, process or mechanism which allow to just a minute. Windows Defender Firewall has blocked some features of this app. Allow host process to settings synchronize and communicate this network. अभी इसमें क्या समझता है हमको? कुछ नहीं, जाने दो, बाद में देखते हैं. Which allow to get data from one class to another class, where one class is termed as base class and another class is termed as derived class. वापिस, it is the process or mechanism, और मैं उसको फीचर भी बोल सकता हूं. फीचर of object oriented programming. It is a feature of object oriented programming. It is a process or mechanism which allow to get, और derive word भी आप यूज कर सकते हो. Derive data from one class to another class. I am creating the definition. मुझे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, and very much I want to pass it to you. Don't make this subject as a burden. जब भी इनहेरिटेंस आए आपको क्या दिखता है दिमाग में? So I am interested to know कि ओके, दो क्लास है, एक क्लास में से दूसरे क्लास में इनहेरिट किया, सो उसका मैं डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा डायग्राम? सो लेट मी डिजाइन द डायग्राम. ये रहा मेरा एम्प्लॉय और ये बनेगा मेरा एम्प्लॉय कम्युनिटी. मैंने एक लाइन ड्रॉ करके उसको क्लास का नाम दे दिया और दूसरा डिराइव करके मैंने और एक क्लास का नाम दे दिया. अभी ऊपर लिख दिया मैंने क्लास का नाम एम्प्लॉय, और नीचे लिख दिया एम्प्लॉय कम्युनिटी. अभी एम्प्लॉय की कौन सी इंफॉर्मेशन है? तो लेट्स से नेम एंड एम्प्लॉय का आईडी. कम्युनिटी में क्या होगा? लेट अस कंसीडर कि उसका इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करता है. एंड दिस इज व्हाट यू गेट इट फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास. तो मुझे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है. नाउ एरो का डायरेक्शन ड्रॉ करना है. एरो का डायरेक्शन आप अप करो, डाउन करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. आप यहाँ पे करते तो भी चलता था, ऐसा नहीं है. दोज हु आर इन साइंस, इफ यू कैन रिलेट कि डाउन एरो हैज अ डिफरेंट मीनिंग देन द अप एरो, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ above class is what? Base class. The below class is derived class. मेरे लिए इतना सिंपल है. So for me this is a base class and this is a derived class. ऐसा. Okay, fine. Anything you have a doubt, if, yeah, but up till now? बेसिक, एकदम बेसिक. अभी मैं फिल इन द ब्लैंक पे आता हूं. लिखना क्या है इधर? सो आई हैव अ चॉइस, प्राइवेट और पब्लिक, और नया कीवर्ड आया आपके लिए प्रोटेक्टेड. तीन में से एक लिखना है. एंड इफ यू डोंट राइट,
if you don't write, by default it will be private. अभी क्या डिफरेंस है वो आज के सेशन में हम लोग लर्न कर रहे हैं, और आपको कौन सा यूज करना है दैट ऑल्सो आई विल डिस्क्लोज, सो नो कंफ्यूजन. पहले इतना हम सिंटेक्स लिख देते, 3 में से एक यूज करना है एंड इनहेरिटेंस का डेफिनेशन. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि कौन सा लिखने का. एवरीवन, तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम and let's write it down what is there in my notepad. ये एक डायग्राम क्विकली ड्रॉ करना. ओके, और ये आपका नोटपैड साइड बाय साइड रख दिया मैंने. पहले डायग्राम ड्रॉ करो एवरीवन. फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करना. टॉपिक का नेम इज इनहेरिटेंस. डायग्राम कंप्लीट एवरीवन. सर एक मिनट. क्विकली करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. स्केलिंग नहीं करना है, ऐसे ही रफ डायग्राम. And this diagram is important by the way whenever you are writing theory for inheritance. चलो लेट्स मूव टू थियोरी. ये कॉपी कर लेना. दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन, और ऊपर वाला एग्जाम्पल हो गया. मैं एग्जाम्पल पहले देता हूं सो दैट आप रिलेट कर सको. दिस इज एग्जाम्पल, दिस इज डेफिनेशन. क्विकली लिखना. मैं आपको फोटो करने को भी ले सकता हूं, लेकिन बट राइटिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट दीज डेज. नाउ स्टार्ट राइटिंग प्रैक्टिस. अभी एटलीस्ट देख के लिख रहे हैं. Later on, without looking at the content, we will writing the practice. सर आपने वो कल मैसेज डाला था ना कि आप ऑफलाइन लेने वाले हो. हाँ सर हम लोग के थोड़े सोसाइटी में वो कोविड वाले थोड़े हे हुए हैं. आए हैं, केस आए हैं. हाँ मतलब अभी तक ऐसा डिक्लेयर नहीं हुआ है, पर उन लोग का पूरा घर बंद है. अच्छा. तो लाइक उन लोग मतलब इनडायरेक्टली यही है कि उनको लेके गए. बराबर.
So I'm not there from 17 December. You are not there? Yes, sir. Maybe I'll अच्छा, come back in Jan. कहाँ जा रहे हो भाई? टूर पे जा रहे हो? So Goa. ये ले, फॉर वेकेशन और फिर ऐसे ही फैमिली गैदरिंग और स्टडी करेगा No, कि no. नहीं? I'm taking all books and all over there also. हाँ, I mean, just for अच्छा, some time only because then because my father's क्रिसमस वेकेशन. ओके, आर यू देयर? yes, sir. अच्छा, so you were saying you are not there on 19, तो फिर फिजिकल लेक्चर नहीं रखते हैं, then let's keep online. Okay. Yeah, I'll be fine. ठीक है. So अचिंत्य का भी एक कंसर्न है that some is there in society. This is what you proposed and I said let me have work out with Manish sir. Manish sir is extremely occupied on Saturday Sunday for his college practicals. He is going to SVP college ना, तो अभी आज भी पूरा सुबह 7 से लेके शाम को 5 बजे तक पूरी बैच को प्रैक्टिकल्स करा रहे हैं. आई डोंट नो आपकी कॉलेज वाले भी आपको बुलाएंगे प्रैक्टिकल कराने के लिए शायद, जनवरी में Yes, बुलाएं. sir. है ना? तो वही मनीष सर आजकल कर रहे हैं वीकेंड में, सैटरडे संडे पूरा 6-8 घंटा. तो इसकी वजह से ही इज लिटिल ऑक्यूपाइड, बट देन ही कमिटेड. वेडनेसडे उसने इवनिंग का स्लॉट निकाल दिया है, संडे का भी मॉर्निंग का. कमिंग संडे उनको नहीं है, ऑल्टरनेट संडे रहता है. तो ठीक है, अभी सर विल टेक ऑनलाइन बोथ द सेशंस, ही विल टेक ऑनलाइन एज टाइम रिमेन्स द सेम, खाली हम लोग ऑनलाइन ले लेंगे, ऐसा करते हैं. ओके सर. कहा कि आप फिर से वो एग्जाम कब से स्टार्ट करने वाले हो? टेकिंग द टेस्ट ना. हाँ, और आपने तो चेक किया और बताया भी नहीं अभी तक. हाँ, वो भी मेरा एक लैक ऑफ बहुत बड़ा इंटेग्रिटी है. पता नहीं मैं कुछ जोन में आ गया कि पेपर आपका चेक ही नहीं किया. तो सबसे पहले तो नया टेस्ट डिक्लेयर कर लेते हैं सो दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट 7 days. अभी ये हाँ सर. इसको तो फेस्टिवल है, बट देन इन बिटवीन ही विल ऑलवेज प्रिपेयर फॉर. तो 15 दिन का टाइम दे देता हूँ. 15 12 + 15 इज गोइंग टू बी 29. तो ऑफ कोर्स 31st नहीं आ रहा है तो चल जाएगा. लेट्स लुक एट द डेट्स. तो 26th इज संडे, तो 26 का एक टेस्ट डिक्लेयर कर देते हैं इथेन, Yes, sir. है ना? 7 और 7 15 दिन मिल गया, इनफ है. एंड आई डिस्क्लोज द टॉपिक नेम फॉर माय सब्जेक्ट एंड फॉर सर का सब्जेक्ट वेडनेसडे सर डिक्लेयर कर देंगे. मैं आज ही डिक्लेयर कर देता हूँ, मेरे सामने नोट्स है, मैं बता देता हूँ आपको. कंस्ट्रक्टर रहेगा ऑफ कोर्स, डिस्ट्रक्टर रहेगा, 2 हो गया, मतलब वो तो एक चैप्टर ही है. ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारा बाकी है. इनहेरिटेंस हो जाएगा आज, इनहेरिटेंस होगा, और क्लास एंड ऑब्जेक्ट होगा. 3 टॉपिक रहेंगे. मैं पेज नंबर आपको बोल देता हूँ. ओके, चलो कॉपी एवरीवन. Yes, sir. चलो, सो नाउ लेट अस लुक एट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटेक्टेड. आपको और किसी को नहीं पता है, मैंने कराया नहीं है, तो मुझे पहले आप लोगों से सुनना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेट. अचिंत्य आप बताओ. सर वापिस आपने क्या पूछा? व्हाट इज प्राइवेट का डेफिनेशन? नॉर्मल वे में बोलने का कि जो आपने बताया था वो C++. हाँ, प्राइवेट का एक ही डेफिनेशन है ना, बोलो. Which इन is टर्म्स ऑफ not, C++. it allows specific users to access. नहीं, नॉट एट ऑल. मैंने ऐसा कभी नहीं बताया कि स्पेसिफिक यूजर को अलाउ करेगा. बोलो वापिस. इन रेफरेंस ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट के टर्म्स में बोलो. हाँ, आप जो Data बोलो. members हाँ, which can be accessed by data members. नहीं, बट उसकी लिमिट कहाँ तक यूज कर सकता है वो? Within the class. Yes, this is the punchline word. एंड अचिंत्य आपने जो बताया वो ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी हो गया कि ये मेरा ऑफिस प्राइवेट है, मतलब नोबडी कैन कम इनसाइड विदाउट माय परमिशन, वो हो गया प्राइवेट. बट when I say about the C++, private is an access specifier which allow to access data within the class. ये क्लियर है क्या? हाँ सर.
तो पब्लिक का डेफिनेशन क्या आएगा रितिका? It is an access specifier which allows to access data within as well as outside the class. वेरी गुड. अगर आउटसाइड अलाउ करेगा तो विद इन भी करेगा, तो मैं दोनों लिखता हूं, विद इन द क्लास एज वेल एज आउटसाइड द क्लास. दैट्स कॉल्ड पब्लिक. नाउ टुडे वी आर लर्निंग न्यू कीवर्ड कॉल्ड प्रोटेक्टेड. क्या लग रहा है प्रोटेक्टेड? So it is an access specifier which allows to access the data within the class and in derived class. In the derived class, but not in main. मेन में अलाउड नहीं है वो, लेकिन ये एग्जाम में नहीं लिखना है. मैं ब्रैकेट डाल देता हूं. इतना डिटेल में बताने की क्या जरूरत है, सामने वाले को समझ में आ गया. लेकिन मैं आपको राइट नाउ नया कीवर्ड है करके एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इट इज एन एक्सेस स्पेसिफायर विच अलाउ टू एक्सेस द डेटा विद इन द क्लास एंड इन द डिराइव्ड क्लास, बट नॉट इन मेन. मतलब कैन आई से दैट एम्प्लॉय के अंदर देर इज अ वन वेरिएबल अंडर द प्रोटेक्टेड सेक्शन जिसका नाम है इंट z. इस z को मैं यहां पे यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? void get के अंदर अगर मुझे यूज करना है और मुझे ऐसा लिखना है z इक्वल टू 10, कैन आई यूज इट और नॉट? No. ओके. इथेन सेज नो. रितिका? प्रोटेक्टेड का डेफिनेशन देखना जरा वापिस. इट इज एन एक्सेस स्पेसिफायर विच अलाउज टू एक्सेस द डेटा विद इन द क्लास एंड डिराइव्ड क्लास. तो ये z को कहां पे डिक्लेयर किया है अपने प्रोटेक्टेड में. नाउ कैन आई यूज इट हियर इन डिराइव्ड क्लास? Yes. यस, बिल्कुल कर सकते हो. व्हाई नॉट? मतलब कैन आई से दैट प्रोटेक्टेड इज यूज्ड विद इन द फैमिली as this is a parent and this is a child class? Yes, Parent sir. class का protected can be used in the derived class. Derived में public में लिखा, private में लिखा, protected में लिखा, that is not important, but it is basically allowed to use in the derived class. अच्छा अचिंत्य, मुझे बता प्राइवेट में और प्रोटेक्टेड में क्या डिफरेंस हुआ? Are you there, प्राइवेट अचिंत्य? में वो विद इन द क्लास रहेगा Very और good. प्रोटेक्टेड में आउटसाइड द क्लास और विद इन द क्लास दोनों में रहेगा. बराबर. तो अभी मुझे बता, मैं प्राइवेट के अंदर एक वेरिएबल लिखता हूं इंट x, और ये x को मैंने 5 का वैल्यू दिया, चलेगा कि नहीं चलेगा? डिराइव्ड क्लास में चलेगा क्या x, क्योंकि प्राइवेट में है? हाँ चलेगा. प्राइवेट का डेफिनेशन तू क्या बोल रहा है? विद इन द क्लास. तो मैं विद इन द क्लास यूज कर रहा हूँ कि आउटसाइड द क्लास यूज कर रहा आउटसाइड द क्लास यूज कर रहे हूँ? तो हैं. चलेगा क्या? नहीं. हाँ, तो एरर दे देगा. क्या एरर देगा? कैन नॉट एक्सेस हियर, यू कांट यूज हियर. आप नहीं यूज कर सकते. अभी डिफरेंस समझ में आया क्या प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड का, अचिंत्य? हाँ सर. सब लोग डेफिनेशन तो रट्टा मार लेते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि कैसे एक्सेस और कैसे नहीं. मैं एक्स एंड जेड से दिखा ही रहा हूं आपको. एक्स इज नॉट अलाउड, जेड इज अलाउड. अच्छा रितिका, मुझे प्रोटेक्टेड और पब्लिक का डिफरेंस बता. सर पब्लिक में जो यूज करेंगे वो हम लोग विद इन द क्लास भी यूज कर सकते हैं और आउटसाइड द क्लास भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड का विद इन द क्लास एंड ओनली इन द डिराइव्ड क्लास, मेन फंक्शन नहीं कर वेरी गुड. मेन में मैं पब्लिक को यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? सकते. यस, कर सकते हैं. लेकिन प्रोटेक्टेड को यूज कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता. और चाहे मुझे मेन में यूज करना है या कहीं पे भी यूज करना है, आई हैव टू डिक्लेयर एम्प्लॉय कम्युनिटी का ऑब्जेक्ट EC, और EC
डॉट z इक्वल टू 15 लिखा तो मुझे एरर देगा, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। और अगर मैं यहां पे पब्लिक लिखता हूं, समझो यहां पे पब्लिक लिखता हूं इंट y, तो इस y को मैं यूज कर सकता हूं क्या, इथेन y is declared in the public section, look at this, Yes, sir. और उसको मैं यहां यूज कर सकता हूं क्या मेन में, यस नो, और कंफ्यूज्ड मे बी, Confused. no problem, good for saying that. I have a class employee community which inherits the data of employee. In my class employee, I have a public section where I have a variable called y, and public का definition says that you can use the data in the same class as well as in the derived class as well as in the main. Now मैंने main में यूज किया, I have a choice, y equal to 90 लिखूं कि ec.y लिखूं. So somebody said that you can't write y equal to 90. अगर y equal to 90 लिखा तो कंपाइलर को लगेगा इस y is declared in integer, main के अंदर declared है ऐसा समझेगा. But the moment you create employee community का object called ec and ec.y equal to 90 लिखा तो उसको समझता है कि ये y is a part of ec, where ec is a part of employee community. Employee community is a class और उसके public में int y है. Y is allowed, yes or no, रितिका, इथेन? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल अलाउड. अचिंत्य समझा क्या? हाँ सर. अभी मुझे बता, ec.z अलाउड और नॉट अलाउड? z किधर है तो ऊपर जाके देखते हैं, z इज इन प्रोटेक्टेड, नॉट अलाउड. नॉट अलाउड. तो खाली पब्लिक वाले मेन में अलाउड है. तो वापस से मैं क्रिएट करता हूं प्राइवेट का डेफिनेशन विद इन द क्लास, पब्लिक एनीवेयर. लेकिन एनीवेयर मतलब क्या, कांदीवली बोरीवली? नो, बी स्पेसिफिक. इट इज एन एक्सेस स्पेसिफायर विच अलाउ टू एक्सेस द डेटा विद इन एज वेल एज आउटसाइड द क्लास और डिराइव्ड क्लास, एनीवेयर. और प्रोटेक्टेड इज सेइंग दैट विद इन द क्लास एंड इन द डिराइव्ड क्लास. बट मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए लिख रहा हूं बट नॉट इन द मेन. मेन में प्रोटेक्टेड इज नॉट अलाउड. तो मैं इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं. मेरी ऑफिस में ना एक एल्यूमिनियम का फोल्डेड लेडर है. लेडर क्यों रखा है मैंने, क्योंकि मेरी ऑफिस में मैंने ऊपर लॉफ्ट बनाया है. लॉफ्ट में मैंने अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक जो लैपटॉप खराब है या फिर कोई एक्स्ट्रा मॉनिटर है, फिर मेरी नोट्स है, कवर पेज है, ऐसा दुनिया भर का स्टेशनरीज एंड वो सब रखा है जैसे हम लोग अपने घर में स्टोर रूम में रखते हैं. मेरे लिए लॉफ्ट इज स्टोर रूम. ना वो लॉफ्ट में नहीं बनाता तो वही चीज मुझे नीचे रखना पड़ता. सो आई डिजाइन अ लॉफ्ट. सब कुछ ऊपर चला गया, अच्छा भी दिखता है, किसी को पता भी नहीं चलता बिकॉज इट इज कंसील्ड फ्रॉम ऑल द साइड. नीचे से खाली ओपन होता है. बट एक प्रॉब्लम कि मुझे लेडर चाहिए, वरना मैं ऊपर कैसे जाऊं लॉफ्ट में. तो मैंने फोल्डेड लेडर रखा है क्लास में. नाउ सिंस आई हैव अ लेडर इन माय ऑफिस, वॉचमैन एंड ऑल पीपल नो दैट. अभी बाजू में मेरा ऑफिस का नाम नंबर 204 है. अभी 203 में से एक मेंबर आया एंड दैट, प्रज्ञेश भाई आई वांट दिस लेडर फॉर हाफ एन आवर बिकॉज इलेक्ट्रिशियन केम एंड उसको हाइट में ऊपर का ट्यूबलाइट चेंज करने को नहीं हो रहा है. ऐसे नो प्रॉब्लम, लेके जाओ. वो लेके गया, रख के गया. अभी ये देख के एक बार वॉचमैन बोलता है, प्रज्ञेश भाई नीचे बाजू की बिल्डिंग का एक वॉचमैन आके बोलता है उसके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, उसको सीढ़ी चाहिए. आई सेड नो. व्हाई? बिकॉज वो मेरी कम्युनिटी का नहीं है, बिकॉज वो मेरी बिल्डिंग का नहीं है. मैं आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं. बाय द वे डोंट लुक एट कि सर ने ना क्यों बोला. सो आई एम सेइंग दैट कि मेरा मेंबर नहीं है वो सोसाइटी का. हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि
उसने वापिस दिया, या मेरा कौन ध्यान रखेगा उधर लीडर का? बाजू वाला तो मैं आया लेके गया, मैं बीच में कुछ काम निकला, मैं ऑफिस बंद करके चला गया, तो वो तो कल दे देगा मुझे, बट वो बाजू वाला बिल्डिंग वाला कौन लेके गया क्या मालूम। व्हाट आई वांट टू से, बाजू वाला फ्लैट मतलब मेरा नेक्स्ट ऑफिस वाला इज विद इन द फैमिली, वो मेरा डिराइव्ड क्लास है, मैं उसको अलाउ कर रहा हूँ। लेकिन वो बाजू की बिल्डिंग में है, वो पब्लिक है मेरे लिए, आई डोंट बिलोंग्स टू दैट, मैं नहीं वो दे रहा हूँ, एक्सेस नहीं है। सो कैन आई से दैट लीडर इज नॉट एक्सेसिबल टू नेक्स्ट सोसाइटी, और मे बी फॉर द पीपल, और मे बी फॉर द पब्लिक। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. है ना? वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। तो अभी मैं उसको सीधा प्रोग्रामिंग में डालता हूँ, और अभी हम लोग प्रोग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे अलाउड है और कैसे नॉट अलाउड है। ओके, तो ये सब कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है। सो लेट मी ओपन द सॉफ्टवेयर इन विच यू कैन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली होता कैसे है। सो जस्ट for the good background, I am using code blocks today so that you will able to see the content very clearly in the white background rather than blue background. Okay, the only difference in code block is I have to use a one special statement called using namespace std, आप उसको इग्नोर कर देना। तो जब भी कॉपी करेंगे तो मैं आपके लिए टर्बो सी प्लस प्लस की स्टाइल का बना के देता हूं आपको। is a big IDE software, will take time to open, just allow a minute. सो रिसेंटली कोई प्रोग्राम बना रहेगा सी प्लस प्लस का, तो मैं उसको ओपन करता हूँ एंड उसको सेव एज कर लेता हूँ। यस, INH। सो अभी ये टाइटल को छोड़ देते हैं, सीधा अपना क्लास पे आते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, आई एम क्रिएटिंग अ क्लास, वही प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा हूँ, जूम इन करके रखता हूँ। क्लास एम्प्लॉय, curly bracket open close, I am declaring 3 sections for you, int x, int y and int z। ये आप लोग को MCQ में भी हेल्प करेगा और इवन थ्योरी में भी हेल्प करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, डू नॉट मेक रट्टोफिकेशन। मैं जो कराने जा रहा हूँ आप बोलोगे सर 12th के सिलेबस में इतना जाना नहीं है, नहीं, वी विल डू दैट, इट्स इम्पॉर्टेंट। ये हो गया मेरा 3 वेरिएबल्स। जैसे वेरिएबल्स है वैसे फंक्शंस भी समझ के चलो क्लास एम्प्लॉय के अंदर। नाउ आई एम डिराइविंग क्लास एम्प्लॉय कम्युनिटी, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। कम्युनिटी कोलन एम्प्लॉय। अभी उसके पहले क्या लिखने का, तो मैं अभी आपको प्राइवेट से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, या तो आपको जो मेजॉरिटी यूज करना है वो लिख लेते हैं, पब्लिक। अभी यहां पे मैं क्या करूंगा, पब्लिक, और यहां पे एक फंक्शन बनाऊंगा void get, या तो void display इज अ बेटर।
अभी मैं यूज करता हूं x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20 and z equal to 30. Which variable is allowed to use and not to allowed to use, Ritika? Z z को यूज नहीं कर सकते. कर सकते हो Z को यूज. और what about x and y? x is declared in private, y is declared in public. बोलो. Y को भी यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड है ना. वेरी गुड. और किसको यूज नहीं कर सकते? X को. x को. परफेक्ट. अभी मैं मेन बनाता हूं और मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाता हूं. ऑब्जेक्ट किसका बनाऊं? मेरे को क्वेश्चन आया अभी तक आप ऑब्जेक्ट क्लास का बनाते थे. नाउ आई हैव अ 2 क्लास. इथेन व्हाट डू यू थिंक, कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए? नहीं, कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का? यू हैव अ 2 चॉइस, आइदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय कम्युनिटी. Employee. ओके, व्हाई? Because like base class. ओके, ऑल राइट, ठीक है, ये भी ठीक है. अच्छा, मैं आपको अभी कैसे एग्जांपल दूं जिससे आपको ये आइडिया है. ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके, let us consider computer science subject for 11th and computer science subject for 12th. अगर मैं 11th ज्वाइन करता हूं तो मेरे को 11th का नॉलेज मिलता है. अगर मैं 12th ज्वाइन करता हूं तो मुझे 11th का बेस भी मिलता है और 12th भी मिलता है. तो आप क्या करोगे? तो सम ऑफ यू विल से कि सर 11th बेस चाहिए, बट 12th करने से वो 11th का बेस मिल रहा है, तो लेट अस ज्वाइन विद 12th. अभी आप लोग ने पहले ही दिन मुझे सरेंडर कर दिया, सर आपको 11th का थोड़ा सिखाना पड़ेगा, मुझे नहीं आता. किया था लेकिन रट्टा मारा था. कोई कोई तो ऐसा भी स्टूडेंट होगा कि उसने पूरा 11th पास कर दिया और एक भी प्रोग्राम रन भी नहीं किया होगा, और वो आप तीनों में से तीनों भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, राइट? तो माय पर्सपेक्टिव इज कि अगर मैं एम्प्लॉय कम्युनिटी का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, दैट इज कॉल्ड माय डिराइव्ड क्लास का, व्हाट आई कैन यूज? एम्प्लॉय कम्युनिटी का डेटा एज वेल एज एम्प्लॉय का डेटा. यस और नो? Yes. क्योंकि एम्प्लॉय कम्युनिटी डिराइव्स द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय. और अगर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो कैन आई यूज एम्प्लॉय कम्युनिटी का डेटा? I repeat my question. If I create an object of employee class, can I use the data of employee community? Yes. नहीं, not at all. मुझे बताओ एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाने से उसका एम्प्लॉय कम्युनिटी से क्या रिलेशन? हैव यू रिटर्न एनीवेयर एम्प्लॉय इज अ चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय कम्युनिटी? वो तो ये लिखा है आपने कि ये पेरेंट है, ये चाइल्ड बना, ये पेरेंट है. लेकिन मैं जब भी पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय का, तो उसके साथ चाइल्ड कहां से आ गया भाई? Yes, sir. अचिंत्य समझा क्या? हाँ सर. मैं वापिस बोलता हूं, चाइल्ड को पेरेंट की प्रॉपर्टीज इनहेरिटेंस में मिलती है, यस और नो? Yes, sir. बट पेरेंट को चाइल्ड की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिलती है क्या? नहीं. नहीं, ऐसा लॉ नहीं है. That's called inheritance. It says that it goes to the derived class. उल्टा नहीं होता. That's a different story. If you say sir accident हो गया तो क्या, and then accidental death हो गया of child का, तो of course सब कुछ parent को मिलेगा. That's the accident. That's called exception, जिसको मैं error बोलता हूँ. But Yes, sir. majority case में it is not true. It's always child class gets the data from parent class. तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाना चाहिए? तो आई मस्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ
derived class. Create an object of derived class. तो अभी ये आते हैं एम्प्लॉय क्लास में, और अभी मैं आता हूं एम्प्लॉय कम्युनिटी. EC डॉट डिस्प्ले. ठीक है. And now I'll run my program, save my program and run my program. हमने x को, y को और z को यूज किया और उसने मुझे एरर दे दिया. x पे एरर दिया. देखते हैं क्या लिख के आता है. इथन ये पढ़ना क्या एरर है रेड कलर में, if it is readable. int employee x is private within this context. समझा? It's private. है ना, प्राइवेट है तो यू कांट यूज. वो बोलता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू कैन नॉट यूज इट. वो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं लेकिन ऊपर है x और उसको आप नीचे यूज कर रहे हो Yes. तो एरर देगा. तो ये कमेंट कर दूं तो एरर नहीं देगा. और अभी मैं सी आउट करूं x y नहीं y z. साथ में y इक्वल टू भी लिखता हूं ना, उससे पता चलेगा. अभी रन कर रहा हूं मैं. And I must get the output of y equal to something and z equal to something. Can you see that? Yes. Output is not important at all. अचिंत्य इंपॉर्टेंट क्या है, मैं ये सिखा रहा हूं कि भाई कौन सा वेरिएबल आप एक्सेस कर सकते हो और कौन सा वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते हो. और अगर मैं वेरिएबल बोलता हूं तो सेम लॉजिक इज अप्लाइड टू फंक्शंस आल्सो, है ना. फंक्शंस का मतलब क्या हो गया, मैंने यहाँ पे समझो प्राइवेट के अंदर एक फंक्शन बनाया फैक्टोरियल. ऐसा मैंने कोई फंक्शन बनाया. सो कैन यू यूज इट इन डिराइव्ड क्लास रितिका? नो. और अगर मैं आपको बताऊं कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी डिराइव्ड क्लास मेरा फंक्शन को यूज नहीं करना चाहिए, मैं उसको किसके में रखना चाहिए, प्राइवेट में कि पब्लिक में? प्राइवेट में. अचिंत्य आर यू एबल टू रिलेट दिस? जो चीज मुझे नहीं देनी है आई विल कीप इट अंडर प्राइवेट. हाँ सर. जो चीज मुझे देनी है आई विल मेक इट अंडर पब्लिक. और जो चीज मुझे ऐसी लगती है कि मुझे विद इन द कम्युनिटी, मेरी ही बिल्डिंग में, मेरे ही क्लास में और डिराइव्ड क्लास में देना है, मैं उसको प्रोटेक्टेड में रख दूंगा. जैसे आप लोग ऐसा करते हो क्या? फॉर एग्जाम्पल आचिंत्य एंड हितांशु आर इन द सेम क्लास, सो दे मे एक्सचेंज देयर नोटबुक और नोट्स फॉर वन और अदर रीजन. बट कोई आउटसाइडर आपको पूछेगा लेकिन 12th का ही है, तो आप 2 बार सोचते हो मैं उसको दूं ना दूं, राइट? बिकॉज शायद वो मेरा नोट्स को कुछ कर देगा, डैमेज हो जाएगा, दिस दैट मिस हो जाएगा, मेरी बहुत सारी मेहनत है उसमें. यू बिकम लिटिल पजेसिव एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट. तो वो कौन सा हो गया? आउटसाइडर, मतलब पब्लिक हो गया. तो यू विल से नहीं नहीं मेरे पास नहीं है और आई हैव टू रीड, ऐसा Yes. है Yes, ना. sir. और आप ही की क्लास का कोई स्टूडेंट मांगता है तो आप दे दोगे क्योंकि वो आपके क्लास में आने वाला है कल भी, तो वो प्रोटेक्टेड हो गया. और प्राइवेट का मतलब आप किसी को कुछ भी नहीं देंगे, अपने पास ही रखोगे. दैट्स कॉल्ड प्राइवेट. आई होप यू
ऑल कैन रिलेट दिस प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक, Yes, sir. है ना? तो ये कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको एरर पर्सपेक्टिव से दिखाना था। अभी मैं वापिस इधर आता हूं, ये तो एरर दे दिया और उसके एरर के लिए क्या लिखूं? प्राइवेट कांट एक्सेस्ड इन डिराइव्ड क्लास, ऐसा। अभी मैं इधर यूज करके देखता हूं, EC डॉट, जैसे मैंने EC डॉट लिखा ना, आई हैव अ चॉइस, मुझे डिस्प्ले यूज करना है, नो, X यूज करना है, यस, Y यस, Z यस, तो मैं यूज करता हूं, चलो, और उसको डिस्प्ले करता हूं, सी आउट। और यहां पे एक मैसेज लिखता हूं, इन मेन। अभी ये Y और Z हैव यू डिक्लेयर्ड इन द मेन? आपने मेन में डिक्लेयर किया है क्या? नो, एरर दे देगा, देखो एरर दे दिया, y इज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो आप बोलना चाहते थे अरे y डिक्लेयर्ड है सर, ऊपर डिक्लेयर्ड है, किधर ऊपर? एम्प्लॉय कम्युनिटी में। तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये y एम्प्लॉय कम्युनिटी का है? हाउ विल आई यूज दैट? EC डॉट, यस और नो? यस Yes, sir. और EC डॉट Z। तो एक चीज अभी धीरे धीरे C++ का मास्टर बनने के लिए आपको इतना समझ में आ रहा है क्या? क्लास के आउटसाइड इफ यू वांट टू यूज एनीथिंग फ्रॉम द क्लास, यू हैव टू यूज वाया ऑब्जेक्ट। ये समझ में आ रहा है क्या अचिंत्य? हाँ सर। क्लास के बाहर, मैं वापिस बोलता हूं, outside the class if you want to access or if you want to use anything, you must create an object first, and via object you can use it. So I have created first the object called employee community EC, and then I said EC.y, EC.z, हो Yes, गया। sir. तो अभी देखते वो ये एरर पढ़ के रखना है, एरर y is not declared in this context। अभी क्या आता है देखते हैं। नॉट डिक्लेयर्ड नहीं आया अभी, रितिका, यस सर, अभी क्या आया? प्रोटेक्टेड है, y इज प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड विद इन द कंटेक्स्ट। हाँ। अचिंत्य ये y को एरर क्यों आया, z को क्यों नहीं आया, बता सकता है क्या मुझे? सर y आपने प्रोटेक्टेड में डाला है तो वो मेन में नहीं आएगा। आपने जो वेरी वो गुड, वेरी गुड। y का लाइफ कहां तक है? विद इन एंड आउटसाइड द विद इन द क्लास एज वेल एज इन द डिराइव्ड क्लास। क्लास। मतलब इथन एम्प्लॉय कम्युनिटी के नीचे तीसरा भी कोई क्लास हो सकता है क्या जो एम्प्लॉय कम्युनिटी को इनहेरिट करता हो? यस, Yes, sir. है ना? तो उधर आप y को यूज कर सकते हो, एंड आई विल शो यू दैट। ये रहा मेरा क्लास, और मेरा मैं ऐसा लिखता हूं, न्यू एम्प्लॉय कम्युनिटी विच इनहेरिट्स एम्प्लॉय कम्युनिटी। इज इट पॉसिबल एवरीवन? Yes, sir. यस सर, वेरी गुड। तो इधर मैं क्या यूज कर सकता हूं रितिका? एनीथिंग। ऊपर से क्या यूज कर सकता हूं XYZ में से? सॉरी, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, मतलब प्रोटेक्टेड y एंड और पब्लिक, हाँ, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक यूज कर सकता हूं, बस। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है कॉन्सेप्ट। और मेन में प्रोटेक्टेड को यूज नहीं कर सकते, तो मेरे को ये y को एरर देना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड कांट यूज्ड हियर इन दैट। खाली z को यूज कर सकते हैं। अभी अचिंत्य मुझे बता, बीइंग अ प्रोग्रामर तेरे को सब जगह अलाउ करने देना चाहिए या सब जगह रिस्ट्रिक्ट करने देना चाहिए? विच इज गुड? अलाउ करना चाहिए। जो चीज तुझे अलाउ करनी है तू उसको पब्लिक में रखेगा, और हाँ। जो तुझे सिक्योरिटी वाइज क्रिटिकल लगता है, जैसे पिन नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड, वैसे डेटा को तू क्या करेगा? प्राइवेट में रखेगा। प्राइवेट। और कैन आई से दैट तूने कुछ क्रिटिकल कोविड-19 के रिलेटेड रिसर्च किया, बट यू डोंट वांट टू एक्सपोज,
You want to wait for the correct time so that you can expose. तो आप उसको प्राइवेट में रखोगे. No one can access it. कोई उसको यूज ही नहीं कर सकता. राइट? Yes, sir. ऐसा. तो ये मैंने प्रोग्रामिंग के थ्रू बताया in terms of XYZ so that you can relate it with the definitions. Now I want you to just copy कि किसको allowed किसको not allowed. हम लोग को खाली यहाँ क्लास से मतलब है बस, और फिर हम लोग ना उसको एक प्रोग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं. So let me just move this window down and थोड़ा zoom in कर लेता हूँ. Is this readable? Yes, sir. Yes, sir. So everyone please copy quickly. कोई प्रोग्राम नहीं है ये स्टेटमेंट आपको लिखना है. अगर नहीं दिख रहा है तो जरा जूम करके देखना. x इक्वल टू 10 को मैंने लिखा प्राइवेट कांट एक्सेस हियर इन डिराइव क्लास. यही तो सीखना है हमको. और फिर नीचे प्रोटेक्टेड में मैं एरर दिखाता हूं क्या आया और क्यों आया. सो प्लीज कॉपी दिस कंटेंट. हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं विद द इनहेरिटेंस का प्रोग्राम. Today we kept the lecture till 11:30 and we will see you in the Wednesday for computer science 2. For computer science 1 we have a Sunday lecture. Sunday both the lectures CS2 as well as CS1. We will consider 15 minutes break in between. Yes, sir. रितिका तेरा लेक्चर्स में ज्यादा लूंगा ये वीक में इवनिंग में. तो मैं आपको स्केड्यूल बताता हूँ. वी विल मीट प्रोबेबली ट्यूसडे, वेनसडे. मेरा इवनिंग सेशन के सारे लेक्चर्स ना उधर क्रिसमस वेकेशन दे दिया है 11 स्टैंडर्ड की बैच को. आई वांट टू यूटिलाइज विथ यू. एंड आप सब लोग क्या कर रहे हो ट्यूसडे वेनसडे? सॉरी अचिंत्य और इथेन, ट्यूसडे वेनसडे इवनिंग क्या कर रहे हो आप लोग 7 o'clock से 8:30 में? So mostly chemistry का tuition है, but it depends. Sometimes he doesn't keep. अच्छा. एंड अचिंत्य आपको? सर 7 बजे तक लेक्चर रहेगा, उसके बाद फ्री है. 7 बजे तक लेक्चर जो है वो कभी स्टार्ट हुआ रहेगा? सर फिक्स नहीं रहता है, 2 बजे 3 बजे. अच्छा, तो बहुत ज्यादा हो गया फिर 2 से 7. मजा नहीं आएगा फिर जाने दो. सर लेकिन वो अगर नहीं हुआ तो मतलब अगर अभी मतलब आप देख रहे हो लास्ट 1-2 वीक से तो नहीं हो रहा है. अच्छा, तो एक काम करता हूं मैं अगर रितिका का लेक्चर रख रहा हूं तो रितिका मैं इन लोग को पूछूंगा ट्यूसडे या वेनसडे मॉर्निंग में कि तुम लोग सब लोग इवनिंग में फ्री हो. सब लोग फ्री है तो ऑनलाइन ले लेंगे, यही कंटिन्यू कर लेंगे. और अगर ये लोग फ्री नहीं है तो रितिका आपको अकेले को बुला के कंप्लीट करूंगा मैं. सर अगर मॉर्निंग में लेना है तो 10:30 से पहले कभी भी ले सकते हो. नहीं, मॉर्निंग में तो ये लोग बिजी रहते हैं. मॉर्निंग में आप लोग बिजी हो कि आप लोग फ्री हो 9 to 10:30 भाई? College. कॉलेज है ना? जाता है क्या कॉलेज? तू कॉलेज कॉलेज बोलता है लेकिन. सर प्रैक्टिकल्स है इसलिए. अच्छा, ये मेरे को लगता है इथेन तेरा लास्ट आई हाँ, मीन last वीक week. वीक होगा है ना? ये दिसंबर हाँ. एंड में सब खत्म. Yes, sir. Last week. तू यार गोवा जा रहा है, मेरे को भी ऐसा लगता है मैं भी निकलूं यार.
काफी साल हो गया गोवा जाके, लॉन्ग हाँ से बात है नहीं। एंड मस्ट बी ब्यूटीफुल। अभी एकदम क्रिसमस है तो एकदम माहौल बन गया होगा। हाँ सर स्क्रॉल करो। स्क्रॉल करता हूँ मैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्लास एम्प्लॉय सबका हो गया होगा, क्लास कम्युनिटी से बाकी है तो वो लोग कॉपी करो। अभी यहाँ क्या लिखोगे? ec.y is not accessible here as it is protected, cannot be used in main। अपने वर्ड्स में लिख दो। Because y is protected, you can't use in main, but z can be used because it is in public। सर एक बार फिर से बोलो, आपने क्या बोला? मैं सामने लिखूं y is, ऐसा डायरेक्टली लिखता हूं तो दिखेगा, y is not accessible in main as it is protected। ये टेक्निकल वर्ड हो गया है ना, क्योंकि y प्रोटेक्टेड है, यू कांट यूज इट इन मेन एज पर द डेफिनेशन। बहुत सिंपल है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं नहीं पता मुझे। एंड वेन एवर यू रीड द डिफरेंट ऑथर का बुक्स, you will get either confused or more clear, but if you want to become a more clear, you must have a patience, read, again read, understand, execute, read, again understand, and then you are clear। It's not on the first impression read कर लिया and you are clear, क्योंकि ऑथर क्या बोलना चाहता है यू हैव टू रीड मल्टीपल टाइम्स, वरना पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड में घूमते रहेंगे, लिटरली घूमते रहेंगे। चलो, क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस एक प्रोग्राम करते हैं विच विल गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, एम्प्लॉय का क्या इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो। सो अगर समझो मुझे उसको नीचे वाले कोई भी क्लास में नहीं जाने देना है, सो आई वॉन्ट केयर नेम, एम्प्लॉय का नेम एंड उसका आईडी, और प्रोटेक्टेड में आई एम डिक्लेयरिंग void get and void display।
सो मैं यूजर को पूछता हूं एंटर और उसी को डिस्प्ले करता हूं। नेम एंड आईडी। अभी बराबर उसके जैसा एक और क्लास बनाता हूं जो है आपका एम्प्लॉय कम्युनिटी, और उसके अंदर भी गेट एंड डिस्प्ले को कॉल करता हूं और बनाता हूं गेट एंड डिस्प्ले। अभी इसकी एक स्ट्रेटेजी है, मैं आपको दे रहा हूं राइट नाउ, जस्ट ध्यान देना। इज इट पॉसिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताना इथन, इज इट पॉसिबल कि दो क्लास के अंदर सेम फंक्शन का नाम हो? So for you, you said no, right? But they said it is possible. Okay. And इथन मुझे बता, मुझे ऊपर वाले क्लास का गेट यूज करना है तो क्या लिखूं, और नीचे वाला क्लास का गेट यूज करना है तो क्या लिखूं यहाँ पे? कैन यू टेल मी? जस्ट थिंक एंड टेल मी। अच्छा, मैंने एम्प्लॉय कम्युनिटी के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया तो कौन सा गेट कॉल होगा? एंड एम्प्लॉय के नाम से अगर बनाया तो कौन सा गेट कॉल होगा? कैन यू टेल मी नाउ? E.get. नहीं, I repeat my question. Now I change my question to the person Ritika. Ritika, I have created two objects. One is belongs to employee community, another belongs to employee, and I am calling the get function. कॉल करेंगे ना, एम्प्लॉय कम्युनिटी डॉट गेट जब कॉल होगा तब एम्प्लॉय कम्युनिटी का गेट कॉल होगा, और जब ई डॉट गेट वर्क करेगा तब एम्प्लॉय का गेट कॉल होगा। Very good. And let us see ऐसा हो रहा है कि नहीं, कि एरर दे रहा है। NA और ID में एरर दिया, क्या एरर है जरा देखते हैं और आप सॉल्व करो। ID is a private in this context. अच्छा, यहाँ पे ID की क्या जरूरत है? ये तो ऊपर का क्लास है ना, तो ये नहीं ही अलाउ करेगा। अभी इसके प्राइवेट में मैं क्या लिखूं? तो इसके प्राइवेट में मैं लिखता हूं, हमने क्या डिसाइड किया था? कम्युनिटी के लिए कुछ लेने का डिसाइड किया था क्या डायग्राम में? लुक एट द डायग्राम, years of experience and department, है ना? years of experience इंटीजर का होगा और डिपार्टमेंट विल बी कैरेक्टर। ठीक है, तो मैं यूजर को क्या पूछूं? एंटर डिपार्टमेंट एंड एक्सपीरियंस। Department is DEPT, experience is EXP. ये क्लियर हुआ क्या सब लोगों को? मैं एक बार वापिस कोड आपको बताता हूं। मैंने एम्प्लॉय का क्लास बनाया जिसके अंदर आईडी और नेम यूजर से इनपुट लिया और डिस्प्ले किया।
ये क्लियर है क्या? एनीवन एनी डाउट हियर? नहीं सर। ओके, मैंने उसी का एक रेप्लिका बनाया, बट देन इट इज ऑल्सो गेटिंग इनहेरिटेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। अचिंत्य, इसका मतलब क्या हुआ? अगर एम्प्लॉय कम्युनिटी एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉय कम्युनिटी पेरेंट है और एम्प्लॉय चाइल्ड। वापिस बोलना जरा देख के, कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है, देखो जरा। अच्छा, एम्प्लॉय पेरेंट है और एम्प्लॉय कम्युनिटी चाइल्ड। ओके, वेरी गुड। और कैन आई यूज पेरेंट का डेटा इन अ चाइल्ड क्लास? हाँ। वेरी गुड। अभी हम पेरेंट चाइल्ड में से बाहर निकल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में भी ये वर्ड लिख के आते हैं, पेरेंट एंड चाइल्ड। आई डोंट अंडरस्टैंड, ऐसा कैसे लिख सकते हैं? दे मस्ट राइट बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास, यस और नो? यस सर। तो लेट्स से बेस क्लास एंड डिराइव क्लास, ठीक है। तो मुझे बता, बेस क्लास का गेट एंड डिस्प्ले को कैन आई यूज इन डिराइव्ड क्लास? हाँ। वेरी गुड। अभी मेरे डिराइव क्लास में ऑलरेडी गेट एंड डिस्प्ले है, तो गेट एंड डिस्प्ले की टोटल कितनी कॉपी हुई इन डिराइव्ड क्लास एम्प्लॉय कम्युनिटी? सर एक बार फिर से बोलो। हाँ, तूने बताया कि डिराइव्ड क्लास के अंदर तू बेस क्लास को यूज कर सकता है, बराबर। तो ऊपर का गेट एंड डिस्प्ले को तू यहां यूज कर सकता है, प्लस यस सर। यहां खुद का गेट एंड डिस्प्ले भी है। तो गेट एंड डिस्प्ले की टोटल कितनी कॉपी हुई? 2। 2। वेरी गुड, नो कंफ्यूजन। अभी मुझे बता, मैंने एम्प्लॉय कम्युनिटी का ऑब्जेक्ट बनाया और गेट को कॉल किया, तो कौन सा गेट कॉल होगा? 2 है, एम्प्लॉय का कि एम्प्लॉय कम्युनिटी का कॉल होगा? तू कुछ भी आंसर दे सकता है जो तुझे अच्छा लग रहा है। और अगर मैंने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया तो कौन सा गेट कॉल होगा? सर वॉइस नहीं, आपका आवाज ब्रेक हो गया, वापिस बोलना जरा। सर हाँ, आप पूरा लैग कर रहे थे, आपका आवाज। अच्छा, मैं लैग कर रहा था। यस सर। ओके, नो प्रॉब्लम, आई रिपीट माई स्टेटमेंट। सो नाउ, अगर मैंने एम्प्लॉय कम्युनिटी का ऑब्जेक्ट बनाया तो कौन सा गेट कॉल होगा? एंड एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया तो कौन सा गेट कॉल होगा? बताओ आचिंत्य। अगर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट कॉल हुआ तो वो एम्प्लॉय का ही रन करेगा ना गेट। वेरी गुड। और एम्प्लॉय कम्युनिटी का एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट? कम्युनिटी का किया ऑब्जेक्ट तो वो एम्प्लॉय कम्युनिटी का गेट रन करेगा। यस, चलो देखते। सबसे पहले एम्प्लॉय कम्युनिटी का कॉल होना चाहिए। अभी भी एरर दे रहा है ई डॉट गेट। अभी ये क्या एरर है, देखते हैं जरा। पढ़ो जरा इथेन। error void employee get is protected within this context. अच्छा, So get is protected. गेट इज प्रोटेक्टेड, आपने देखा क्या? उसको अलाउड नहीं है। मैं उसको टेम्पररी पब्लिक करता हूं। ओके, अभी रन करता हूं। एंड इट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड। पहले कम्युनिटी का गेट कॉल होगा, मतलब क्या पूछेगा? डिपार्टमेंट। मेरा डिपार्टमेंट इज लेट से परचेज डिपार्टमेंट, और years of experience is let us say 30 years of experience. अभी वो नाम पूछ रहा है। I said Pragnesh and ID 124545। कोई एरर नहीं, मैंने डिस्प्ले नहीं किया इसके लिए डिस्प्ले नहीं आ रहा है, बट एरर नहीं है। ओके, Yes. अभी देखना, अभी देखना जरा। मतलब जिसका ऑब्जेक्ट बनाया वो कॉल होगा, सीधी बात है, एक ही बात बस।
ठीक है, अभी मुझे बताना एक जस्ट एक सोशल बताना। मेरा एक फ्रेंड है एंड उसके पेरेंट्स आर नाउ बिकम ओल्ड एज 91 एंड 90, ओके, एंड उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है बैंक में एज वेल एज पोस्ट में, और वो सब कुछ एजेंट के थ्रू है। इस लड़के को ऐसा डर है कि कोई एजेंट घर पे आके उसके मम्मी पापा से साइन करा के वो पैसा विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि एजेंट इज फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी वाली फैमिली से है, तो उनको पर ट्रस्ट करते होंगे, तो शायद उसके मम्मी डैडी गलती से साइन करके दे देंगे उसकी एब्सेंस में। तो ये लड़का चाहता है कि कुछ भी एजेंट आए तो डायरेक्टली उसके पास आना चाहिए, लड़के के पास। लड़का पेरेंट्स के पास जाके साइन कराएगा। आपको कॉन्टेक्स्ट समझा क्या? हाँ सर। अभी मैंने पब्लिक रखा है ये गेट को, तो इथेन एरर नहीं आया, लेकिन इट्स नॉट गुड दैट मेन वाला बंदा आउटसाइडर डायरेक्टली एम्प्लॉय का गेट एंड डिस्प्ले को एक्सेस कर रहा है। कैन यू सी दैट? Yes. तो आई Yes, सेड sir. लेट मी मेक इट प्रोटेक्टेड। अभी वो एक्सेस करने गया भी ना तो उसको एरर आ जाएगा। Yes. मैं एक्सेस करने ही नहीं दे रहा हूं। देखो कैसे, उसका ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्टली साइन कराने आया, एरर। ये देखो एरर, ई डॉट गेट से एरर आ गया। मतलब आउटसाइड वर्ल्ड कैन नॉट एक्सेस मेरे फ्रेंड का पेरेंट्स को। आप ऐसा कंसीडर करो कि मैंने उनको अलग से एक, मेरे फ्रेंड ने उनको अलग से एक वेल फर्निश्ड एक बंगलो या फ्लैट बना के दे दिया, एक केयर टेकर दे दिया, बट उनका एड्रेस किसके पास है? खाली लड़के के पास है। दैट इज चाइल्ड क्लास। ये वाला डिराइव्ड क्लास। अभी एजेंट को आना है तो किसके पास आएगा? डिराइव्ड क्लास के पास, राइट? और डिराइव क्लास के पास से वो जाएगा बेस क्लास के पास। रितिका Yes, sir. समझ कि ये फंक्शन का नाम गेट वन है और इसका नाम डिस्प्ले वन है, और इसका गेट है और डिस्प्ले है। तूने मेन से गेट को कॉल किया तो इधर आया। अभी हाँ. इधर से मुझे ऊपर वाले गेट वन को कॉल करना है तो क्या लिखूं? Employee E dot पहले तो ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय, हाँ एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाने का ना? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं बना। ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। स्कोप तो ये लोग रेजोल्यूशन क्या बोलते हैं मालूम है? ये लोग क्या बोलते हैं? ये तो फैमिली वाले हैं ना, खाली फंक्शन का नाम बोल दो चल जाएगा। गेट वन था ना, हाँ गेट वन था। बस डायरेक्टली बोल दो चल जाएगा ऐसा। और इसके अंदर क्या लिख दूंगा मैं? डिस्प्ले वन। इथेन मुझे बता, मेन से सबसे पहले कंपाइलर किधर जाएगा? मेन से। To display the नहीं, मेन से सबसे पहले किधर जाएगा? get कौन सा गेट? EC ईसी, employee एम्प्लॉय कम्युनिटी का गेट में आया। उसके अंदर तूने किसको कॉल किया? गेट वन। get one. तो गेट वन में गया तो पहले ये रन हो गया, यस और नो? Yes sir. यहां से कंप्लीट होकर किधर जाएगा? मेन में जाएगा कि जहां से कॉल हुआ था उधर जाएगा? इधर From the call. यहां आया। अभी उसने डिपार्टमेंट और क्या ले लिया? एक्सपीरियंस। Yes sir. और फिर नीचे गया, मेन में खत्म हुआ। और वैसे ही मैं EC डॉट डिस्प्ले लिखता हूं, देखते हैं रन होता है कि नहीं। एक साथ 4 फंक्शन रन हो जाएंगे। 2 को कॉल किया, वो दोनों आगे वाले 2 को कॉल कर लेंगे, और अगर ये समझता है तो इनहेरिटेंस चैप्टर खत्म हो जाता है।
सर आप ही आपने जो भी बोला ना थोड़ा लास्ट में तो मेरे साइड से कुछ इश्यू था, तो आप एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट करोगे क्या? हाँ श्योर। मैंने हेलो लिखा और उसका आईडी लिखा 56। अभी डिपार्टमेंट मांग रहा है, मैंने बोला परचेज और मेरा एक्सपीरियंस है 30 इयर्स का। नेम इज HR, हेलो, ID 56, डिपार्टमेंट परचेज, एक्सपीरियंस इज 30। फॉरगेट अबाउट द फॉर्मेटिंग, बीच में स्पेस वगैरह नहीं है, उसको नेग्लेक्ट करो। लेकिन मजे की बात क्या है, मैंने मेरा बेस क्लास, मेरा फ्रेंड का पेरेंट क्लास को आउटसाइड वर्ल्ड से इनएक्सेसिबल रखा है। मैंने इनएक्सेसिबल, उसको एक्सेस करने नहीं दिया, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। अचिंत्य ये तो मालूम पड़ा ना तेरे को, प्रोटेक्टेड रखा है मतलब मेन से कोई यूज नहीं कर सकता उसको पब्लिक, वो सीधा यहाँ आएगी। फिर गेट किसको कॉल करेगा, गेट 1 को, गेट 1 को। तो गेट 1 में जाके रन हो जाएगा और डिस्प्ले 1 को। अभी ये सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कंसीडर करो कि डिराइव्ड क्लास के पास 4-5 बेस क्लास है। ऐसा पॉसिबल है क्या? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। Yes, sir. उनके अंकल ने भी इसी चाइल्ड को सारा अथॉरिटी दे दिया और ऐसे 4 अंकल है, तो 4 बेस क्लास बने, तो कौन सा गेट कॉल होगा? बहुत कंफ्यूजन हो गया। कुछ Yes. कंफ्यूजन नहीं, कुछ कंफ्यूजन नहीं, उसने सब नहीं, सिस्टम बना के sir. रखा। तो अभी रितिका बोलती है सर गेट 1 2 3 4 बनाते हैं। नहीं, मेरे को नहीं चलेगा गेट 1 2 3 4। जब भी मैं प्रोजेक्ट आगे बढ़ाऊंगा तो 10 बेस क्लास बनेंगे, तो क्या हम गेट 1 2 3 4 5 6 बोलते रहेंगे क्या? राइट। और फिर मैं अगर ऐसा बोलूंगा गेट 7 में क्या है, तो रितिका सोच रही गेट 7 मतलब 7वें नंबर का क्लास की 8वें नंबर का, बहुत कंफ्यूजन। तो उसका सोल्यूशन देखो अभी, दिस इज व्हाट द इनहेरिटेंस इज। गेट के अंदर गेट को कॉल नहीं कर सकते, लेकिन क्लास का नाम लिख दिया ना तो कॉल कर सकते हो। क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन, फंक्शन का नाम, अमेजिंग फंक्शनैलिटी। आई रिपीट, क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम। ये कौन सा गेट को कॉल करेगा अचिंत्य? कौन सा डिस्प्ले को कॉल करेगा? एम्प्लॉय वाला। एम्प्लॉय का, बात ही खत्म। और अगर एम्प्लॉय की जगह मैंने ऐसा लिख दिया कि क्लर्क, क्लर्क स्कोप रिजोल्यूशन गेट, तो कौन से क्लास का गेट को कॉल करेगा? क्लर्क। क्लर्क। हाँ, अगर मैंने अकाउंट लिख दिया, अकाउंट का गेट। जिस अभी मेरे लिए बहुत सिंपल हो गया, सब क्लासेस के अंदर मैंने क्लास के अंदर फंक्शन का नाम गेट एंड डिस्प्ले ही दिया। इथेन समझा क्या? मेरे को नेमिंग कंफ्यूजन हुआ ही नहीं अभी। एवरीवेयर आई सेड गेट डिस्प्ले, गेट डिस्प्ले, गेट डिस्प्ले। लेकिन जब भी मैं कॉल करूंगा आई विल से क्लास का नाम गेट, क्लास का नाम डिस्प्ले। लेट्स सी Yes. दैट, लेट्स सी दैट वही फंक्शनैलिटी आ रहा है कि नहीं, वो देखते हैं। बिल्कुल आएगा। अच्छा, यहाँ पे Sir, कुछ, get 1 और display 1 किया है ना? हाँ स्मार्ट है कंपाइलर, एरर दे देता है, अपने जैसा नहीं है। गुड गुड गुड। सो आई हैव टू से गेट एंड डिस्प्ले, और एट द सेम टाइम अभी ये कर ही रहा हूँ, तो वो फॉर्मेटिंग में कुछ स्पेस आ रहा था ना, उधर थोड़ा एक स्पेस दे देता हूँ, आईडी आ गया, और फिर यहाँ पे भी एक स्पेस दे देता हूँ तो अच्छा लगेगा। और अभी मैं रन करता हूँ। पहले नाम पूछना चाहिए कि डिपार्टमेंट पूछना चाहिए? Name. नेम ही पूछना चाहिए, ऑब्वियस है। अभी इसको क्यों एरर आया ये देखते हैं। एम्प्लॉय हैज not been declared, is my class name is wrong or spelling is wrong? yes, again smart, Capital. कैपिटल है भाई, कैपिटल। इसके लिए मैं स्टूडेंट को रेकमेंड करता हूँ कभी भी कैपिटल नहीं लिखने का, ये सब हेडेक होता है। देखा क्या आपने प्रैक्टिकली? Yes, sir. सर। स्मॉल ही लिखने का। एंड डोंट वरी, वी विल रन वन मोर कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ इनहेरिटेंस, जहां आप मुझे इनपुट देंगे कैसे करने का। Name and ID. I said Pragnesh. My ID is 980
7, 8, 9. Enter the department. I said purchase, and the years of experience I got is 25. Can you see that? Yes, sir. सुपर्ब. नीट, क्लीन. कोई बोलेगा सर इतना लंबा प्रोग्राम किया, फायदा क्या? बहुत सारा फायदा. अचिंत्य, कैन आई यूज दिस एम्प्लॉय क्लास इन सम डिफरेंट प्रोग्राम इन फ्यूचर? हाँ और उसमें नेम एंड आईडी मिल जाएगा मुझे वापिस, है ना? मुझे यस वापिस से कोड लिखना नहीं पड़ेगा. तो इथेन, मैं जब भी दूसरा क्लास को या दूसरा कोई प्रोग्राम बनाऊंगा ना, तो उसमें ऐसा लिख दूंगा क्लास, माय क्लास, कोलन, पब्लिक, क्लास का नाम, एम्प्लॉय का सब कुछ लिखा हुआ है. यस, नो, मे बी. Yes, sir. And can I create a very complicated formula to calculate the GST and उसका returns and उसका cumulative and all? उस फंक्शन को क्लास में डाल दिया और क्लास को मैंने एक्सेस किया मेरे नए क्लास में. यस, नो, Yes, sir. है ना? जैसा जीएसटी है वैसा टीडीएस कैलकुलेशन है, वैसा इनकम टैक्स कैलकुलेशन है. हर एक कैलकुलेशन के लिए मेरा एक क्लास और एक फंक्शन, या एक ही क्लास, 3 फंक्शंस. Whatever suitable to the client, I can design and I can put accordingly, and I can reuse it. I can reuse it. Tomorrow government has changed the rate of interest. I will change only at one place, and the entire place it is automatically reflected. What is the use of inheritance? Can anyone tell me? Shout out करना. When I say shout out, सबको compulsory कुछ ना कुछ बोलना है, जो भी आपको समझा. What is the application of inheritance, या what is the use of inheritance? I say the name first. Past year, Ritika. past. जो समझा वो बोलो. रितिका नहीं बोला? हाँ. सर, हाँ, इनहेरिटेंस से मतलब हम लोग जो प्रोटेक्टेड डेटा है जो बाकी मेन में यूज नहीं कर सकते, लेकिन इनहेरिटेंस के थ्रू हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. डिराइव्ड में यूज कर सकते हो. ओके. और अचिंत्य, आपको क्या समझा? इनहेरिटेंस में आपने 3 क्लास बताए और उसमें से डेटा डिपेंड करता है. पहले अपने को प्रॉब्लम आता था अगर वो डिराइव में है कि नहीं. बराबर. ओके. हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ. हाँ, तो पहले प्रॉब्लम आता था कि लाइक अभी ये दिखेगा आउटपुट में या नहीं दिखेगा, पर इनहेरिटेंस की वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. सॉल्व हो गया. ओके. हाउ अबाउट इथेन? You can pass data like फ्रॉम वन क्लास टू one अनदर class. क्लास, राइट? तो मैं उसको थोड़ा टेक्निकल वर्ड में बोलूंगा तो रीयूजेबिलिटी बोलते हैं. एवरीवन, आपको Yes, ये sir. वर्ड याद रखना है. इनहेरिटेंस मींस रीयूजेबिलिटी. एक बार लिखा, अगेन एंड अगेन यूज कर सकता हूं मैं. आप लोग को पता है कंपनी में जो डायरेक्टर होता है उसकी डिजिटल सिग्नेचर होती है. Yes. तो वो हर दिन 500 डॉक्यूमेंट सिग्नेचर नहीं करता. एक बार सिग्नेचर करा, उसको डिजिटल सिग्नेचर कंपनी से ऑथोराइज किया, उसको डायरेक्टली इमेज कॉपी पेस्ट कर देते हैं वो लोग. रीयूजेबिलिटी. कंसिडर दैट उसको लग रहा है कि उसका साइन मिसयूज हो रहा है, उसको 1 साल के बाद उसने साइन चेंज कर दिया, तो वो साइन चेंज किया तो वो सर, आवाज नहीं आ रहा है. हाँ, वो फोन आ गया था मुझे. अगर अगर एक ही मिनट. हाँ, वो वापिस कॉल करेगा उसके पहले मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से नेटवर्क. तो मेरे को सिग्नेचर चेंज करना है, तो मैं सिग्नेचर चेंज करूंगा तो वापिस सब जगह पे मैं रीयूजेबिलिटी कर सकता हूँ. Yes. ओके. हमको ये क्लास का फोटो लेना है और आप उसको एज इट इज कॉपी भी करोगे, रन भी करोगे. Yes. तो वो आपको करना है. 1 मिनट रुकना, स्विच हो रहा है नेटवर्क.
Can you hear me now? Can you hear me now? Can you hear me now? मैं 2 मिनट में कॉल करता हूँ आपको। हाँ हाँ, मैं अभी भेजता हूँ। Can you hear me? आप सबके साथ और सबके प्रयास से भारत ने 100 करोड़ कोविड टीकाकरण की बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है। अपना टीकाकरण अवश्य पूर्ण करें और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहें। हेलो। हाँ बोलो, प्रज्ञेश बात कर रहा हूँ। हाँ सर, नहीं वही मतलब हुआ था नाइट। क्या? नहीं 11 का दिया था ना, तो मेरे को लगा कि आप भूल गए। अच्छा, तेजस बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके। ओके।